یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے ایک مرد سے محبت کی اور اس کو پانے کے لیے اپنی ماں باپ کی مخالفت بھی مول لے لی، اور جب اس نے اپنی محبت اس مرد کے اندر تلاش کی تو اسے سخت مایوسی ہوئی جس نے اس کو بیچ راستے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے ایک ایسا مرد دیکھا جس نے اسے سمجھایا کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ محبت، دکھ، درد، احساسات اور زندگی کی تلخیوں پر مبنی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ تیز اور چمکدار دھوپ نے کلثوم کی ساملی رنگت کو جھلسا دیا تھا۔ وہ جلدی سے آٹو والے کو پیسے دے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹرین آنے میں کچھ دیر تھی مگر وہ جلد از جلد پلیٹ فارم پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اکیلے سفر کر رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر بتر تھا، لہٰذا پسینے اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ یہ آنسو اس درد کے تھے جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ گزری تھی۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہماری مزید برداشت کا امتحان مت لو۔ یہ کلثوم کی ساس تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شوہر کی مار پیٹ سے زیادہ طنز کے وہ گھاؤ گہرے تھے جو اس کے سسرال والے لگا چکے تھے۔ محبت کی شادی میں بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ ضروری سامان سمیٹتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ آنسو سیل رواں کی طرح بہتے جا رہے تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سیلاب کے آگے بند نہیں باندھ سکی، کیونکہ جب توقعات ختم ہو جائیں تو انسان کے پاس بے بسی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسے شوہر کے رویے نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا جس سے اسے ایسی امید بالکل نہیں تھی۔ بیگ تیار کرنے کے بعد جب وہ اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لائی تو اس کی ساس بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ دوبارہ ادھر کا رخ کرنے کی زحمت بالکل نہ کرنا اور اپنے بھائی سے کہہ کر سامان بھی اٹھوا لینا۔ ہمیں تمہارے سامان کی قطعی ضرورت نہیں۔ باپ زندہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں، بہنوں اور اکلوتے بھائی کو بتا کر اذیت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ان لمحات کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتی تھی جب تک ممکن تھا۔ یہ شادی صرف اس کے گھر والوں کی ہی نہیں، اس کی اپنی پسند بھی تھی۔ شروع میں اس کے بہت ارمان تھے کہ شادی کے بعد شوہر دل و جان سے چاہنے والے ہوتے ہیں، مگر جب اس نے دیکھا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے تو اسے اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ اس نے ساس نندوں کے روایتی رویوں کے بارے میں سن رکھا تھا، سو اسے بھی کچھ ایسے ہی رشتے ملے تھے۔ اس نے ساس کی جتنی بھی خدمت کی، سلے میں اسے طنز کے نشتر ہی ملے، ہوڑ، نکمی اور نہ جانے کیا کیا۔ سسرال میں اس کا تجربہ بہت تلخ رہا۔ ایسی لعنت ملامت گویا سارے جہان کی برائیاں اسی میں تھیں۔ اسے کبھی کبھی لگتا کہ وہ دنیا کی گھٹیا ترین لڑکی ہے جو ان معصوموں کے حصے میں آ گئی ہے۔ نندے اس کے بنائے کھانوں اور دیگر کاموں میں کیڑے نکالنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ بابر بھائی اپنی بیوی کا بنایا سالن خود ہی کھائیں، میں تو اپنے لیے پیزا آرڈر کرنے لگی ہوں۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر کب تک؟ جب شریک حیات ہی مان توڑ دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کردار کی بھی گھٹیا ہے بابر۔ اس کی ساس جلدی جلدی اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی جو 1 منٹ پہلے گھر میں داخل ہوا تھا۔ پوچھو اس سے یہ 5 منٹ پہلے کسے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے آفس کا پتہ دیں، میں خود آ جاتی ہوں؟ اور بابر نے کچھ سنے بغیر اس کے رخسار پر 2 تھپڑ جڑ دیے۔ تب غصے کی شدت سے وہ بھی پھٹ پڑی اور اس کا سوال پوچھنا ہی جرم بن گیا۔ بابر نے اسے زبان دراز اور گھٹیا عورت کہہ کر بالوں سے پکڑا اور کمرے سے باہر لا پھینکا۔ تمہارا گھٹیا وجود اب میں برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ ابھی اس گھر سے، تمہیں طلاق کے کاغذات جلد مل جائیں گے۔ اس نے نیوٹریشنسٹ کا کورس کر رکھا تھا۔ سارا دن گھر میں فارغ رہنے کی وجہ سے اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسی سلسلے میں متعلقہ آفس میں فون پر بات کرنا اس کا ناقابل معافی جرم بن گیا۔ غصے سے کلثوم کی آنکھیں سرخ تھیں مگر وہ خاموش رہی اور ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ جب وہ سامان بیگ میں ڈال رہی تھی تو اس کی نظر دیوار پر لگی شادی کی تصویر پر پڑی جس میں بابر کی آنکھوں میں ایک الوہی چمک تھی۔ کیا وہ محض ایک فریب تھا؟ وہ محبت جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج اسی محبت کا لاشا اس کے سامنے پڑا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب بابر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، کلثوم میں تمہاری زندگی کو پھولوں سے بھر دوں گا۔ آج ان پھولوں کی جگہ طنز کے کانٹے تھے۔ وہ ہاتھ جو تحفظ کے لیے تھا، آج اسی ہاتھ نے اس کے رخسار پر نشان چھوڑ دیا تھا۔ میں تمہاری رکھیل نہیں، بیوی ہوں، میری بات سنے بغیر تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کمرے کے ہر کونے سے اسے اپنی ہنسی کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں جو اب ماتم میں بدل چکی تھیں۔
वो अलमारी जिसमें उसके अरमानों के जोड़े सजे थे अब एक वीरान गार की तरह उसे मुंह चिढ़ा रही थी। बाहर से सांस की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार के गिरने का इंतजार कर रहा हो। कुलसूम ने सोचा कि क्या रिश्तों की बुनियाद इतनी खोखली होती है कि एक गलत फहमी या किसी की लगाई आग पूरे जीवन को खाकिस्तर कर दे। उसने लरसते हाथों से मुंह दिखाई में मिली अंगूठी उतारी और वहीं मेज पर रख दी। ये इस बात का ऐलान था कि अब उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ट्रेन की तेज बिसिल ने उसे माजी से हाल मिला खड़ा किया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी। कुलसूम ने जल्दी से अपने दुपट्टे से, जिसे उसने मफलर की तरह लपेट रखा था, आंसू साफ किए और बैग को मजबूती से थाम लिया। उसके सामने बोगी नंबर 8 थी, जिसमें खासा रश था। उसने देखा कि बोगी नंबर 6 की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जो इस बात का इशारा था कि वहाँ खाली नशिस्तें मिल सकती हैं। वो बड़े बड़े कदम उठाती आगे बढ़ी। वहाँ रश के बावजूद कुछ सीटें खाली थीं। उसने एक सिंगल सीट का इंतखाब किया, जिसके सामने एक खातून बैठी थीं। क्या ये सीट खाली है? कुलसूम ने पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। उसने बैग ऊपर सामान रखने वाली जगह पर रखा। इसी दौरान ट्रेन ने रवानगी की सीटी दी और चल पड़ी। उसने सुकून का सांस लिया और छोटे बैग से पानी की बोतल निकालकर एक ही सांस में खाली कर दी। हालात की तलखी और गर्मी ने उसे निढाल कर दिया था। खिड़की से नजर आते मनाजिर तेजी से पीछे जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुलसूम की जिंदगी के खुशगवार अयाम पीछे रह गए थे। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे और आसमान पर लाली फैल रही थी, जो उसे अपने ही लहू रंग आंसुओं की याद दिला रही थी। डब्बे की घुटन और बाहर की तपिश ने एक अजीब सा बोझ पैदा कर दिया था। उसने महसूस किया कि आसपास के लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कोई बच्चों को बहला रहा था, कोई मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहा था, और एक वो थी जो अपनी छीनी हुई पहचान का सोग मना रही थी। उसने सोचा कि क्या ये ट्रेन उसे नई जिंदगी की तरफ ले जा रही है या ये महज एक फरार है। सामने बैठी खातून की ममता भरी नजरें उसे कभी कभी बेचैन कर देती थीं, जैसे वो उसके चेहरे पर लिखी दुख की इबारत पढ़ना चाह रही हूँ। कुलसूम ने नजरें झुका लीं। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके जख्मों का सुराग लगाए। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसे समंदर में गिर गई है जहाँ कोई किनारा नहीं। जिंदगी मेरे साथ ऐसा भयानक खेल खेलेगी, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। वो खिड़की से बाहर अपनी जिंदगी के उजड़े मनाजिर देख रही थी, जो रेत की मानिंद हाथ से निकल गए थे। हालात ऐसे थे कि ना सास खुश थी ना नंदे। शौहर घर पर कम ही आता और ज्यादा वक्त दोस्तों के साथ गुजारता। वो सोच रही थी कि क्या बाबर शुरू में वाकई अच्छा था या वो सिर्फ चंद दिन का रूप था। उसकी शख्सियत तजादात का मजमुआ थी। जब कुलसूम की अहमियत कम होने लगी तो उसने खामोश रहना और अपना हक मांगना छोड़ दिया। एक दिन शौहर ने खुश होकर कहा, आज शाम तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाने चलते हैं। सारा दिन वो इसी खुशी में रही। शाम को तैयार होकर इंतजार करने लगी। वो घर आया और अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत मांगी तो सास की आवाज कुलसूम के कानों में पड़ी, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, इतना ही शौक है तो घर ले आओ। और बाबर खामोशी से वॉशरूम में घुस गया। कुलसूम समझ गई कि अब बाहर जाना नामुमकिन है। चाय वाला आ गया, गर्मा गर्म पकौड़े, ठंडी बोतल। इन आवाजों ने उसके ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी। उसने बोतल वाले से कोक और पानी खरीदा। सामने बैठी खातून को भी पेश किया, मगर उन्होंने शुक्रिया कहकर मना कर दिया। उसने बैग से एक रिसाला निकाला और तल्ख यादों से बचने के लिए वर्क गर्दानी करने लगी। अकेली हो? कहाँ जाना है? अचानक सामने बैठी खातून ने पूछा। जी, सादिकाबाद जाना है, उसने जवाब दिया। हालात अच्छे नहीं, अकेली खातून को यूं सफर नहीं करना चाहिए। पिछली सीट से एक मर्द की आवाज आई। कुलसूम ने मुड़कर देखा तो एक ओबाश सा नौजवान सिगरेट पी रहा था। खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उस शख्स की हुलिया, बड़ी मूछें और चेहरे के दाग उसे एक खौफनाक रूप दे रहे थे। ट्रेन के अगले स्टॉप पर एकदम भगदड़ मची। सामने बैठी खातून अपना सामान लेकर उतर गईं। इसी धक्कम पेल में एक नौजवान ने धीमे लहजे में पूछा, क्या ये सीट खाली है? कुलसूम ने इस बात में सर हिला दिया। वो नौजवान शाइस्ता मालूम हो रहा था, मगर कुलसूम फिर भी गैर महफूज महसूस कर रही थी। ताहम रश की वजह से कहीं और जगह मिलना नामुमकिन था। वो नौजवान झिझक के साथ बैठ गया और कुलसूम की तरफ देखने से गुरेज किया, जिससे उसे कुछ इत्मीनान हुआ। अचानक बिखरे बालों वाला एक शख्स आया और नौजवान से बदतमीजी से बोला, ओए उठ, ये मेरी सीट है। कुलसूम ने इस बात में सर हिला दिया। वो नौजवान शाइस्ता मालूम हो रहा था, मगर कुलसूम फिर भी गैर महफूज महसूस कर रही थी। ताहम रश की वजह से कहीं और जगह मिलना नामुमकिन था। वो नौजवान झिझक के साथ बैठ गया और कुलसूम की तरफ देखने से गुरेज किया, जिससे उसे कुछ इत्मीनान हुआ। अचानक बिखरे बालों वाला एक शख्स आया और नौजवान से बदतमीजी से बोला, ओए उठ, ये मेरी सीट है।
वो पान चबा रहा था और उसकी छालिया के दाने कुलसूम की गोद में गिरे। नौजवान उस शख्स की बदनीयती भाग गया और अपनी सीट छोड़कर बर्थ की कोने पर खड़ा हो गया। वो बदसूरत शख्स कुलसूम को घूरने लगा। अब तो सफर का अलग ही मजा आएगा, उसने कुलसूम को देखकर कहा। फिर पिछली सीट वाले उबाश से लाइटर मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जानबूझकर कुलसूम के कंधे से मिस किया। बेचारगी से कुलसूम की आंखें नम हो गईं। आसपास के मुसाफिर अपने मोबाइल फोन्स में मगन थे। खड़े हुए नौजवान को भी ये सब देखकर उलझन हो रही थी, मगर वो खामोश रहा। जब उस शख्स ने सिगरेट का धुआं कुलसूम के चेहरे की तरफ फेंका तो नौजवान से रहा न गया। ओए, शर्म करो कुछ। उस शख्स ने जवाब में बदतमीजी की, मगर नौजवान के सख्त लहजे ने कुलसूम को थोड़ा हौसला दिया। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने बेतुकी बात की। अच्छा, तो ये तेरी बीवी है, इसीलिए तुझे तकलीफ हो रही है। ये सुनकर नौजवान सीख पा हो गया। तमीज से बात करो, तुम हद से बढ़ रहे हो। करीब था कि लड़ाई हो जाती, मगर एक और मुसाफिर ने पीछ बचाव करा दिया। कुलसूम को हैरत हुई कि ये दुबला पतला नौजवान इस भारी भरकम शख्स से उसके लिए लड़ पड़ा। उसने बैग से अपनी छोटी चादर निकालकर खुद को ढांपने की कोशिश की, मगर वो पूरी नहीं हो रही थी। रात की खुनकी बढ़ रही थी। इस बदतमीज शख्स ने जुमला कसा, सर्दी बढ़ रही है, मैं भी चादर निकाल लूं। कुलसूम ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। तभी नौजवान ने अपने बैग से एक बड़ी चादर निकाली और कहा, आप ये ले लें, ये जरा बड़ी है। कुलसूम ने शुक्रिया अदा किया और चादर ओढ़ ली। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी हिसार में आ गई हो। कुछ देर बाद उस शख्स ने फिर बदतमीजी की और कुलसूम के कंधे को छूते हुए जुमला फेंका। कुलसूम की चीख निकली, शट अप। ये सुनते ही नौजवान ने एक जोरदार घूंसा उस शख्स के मुंह पर जड़ दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नौजवान ने उस बदमाश को बुरी तरह रगेड़ा, हालांकि उसकी अपनी शर्ट फट गई और चेहरे पर खराशें आईं। वो शख्स हवास बाख्ता होकर अगले स्टेशन पर उतर गया, मगर जाते हुए धमकी दे गया, यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। ट्रेन दोबारा चली तो कुलसूम ने सुकून महसूस किया। अब वो नौजवान उसके सामने बैठा था, मगर नजरें झुकाए हुए था। अगला स्टेशन बहावलपुर है, मुझे वहाँ उतरना है, अपना ख्याल रखिएगा, नौजवान ने कहा तो कुलसूम उदास हो गई। आपका बहुत शुक्रिया, ये चादर ले लीजिए, कुलसूम ने कहा। नहीं, ये आप रखिए प्लीज। आपकी मंजिल कहाँ है? सादिकाबाद। फिर तो अभी काफी सफर बाकी है। ट्रेन बहावलपुर रुकी। कुलसूम को डर था कि वो बदमाश फिर ना आ जाए, मगर नौजवान अपनी मंजिल आने के बावजूद नहीं उतरा। उसने कुलसूम के चेहरे पर खौफ देखकर अपना इरादा बदल लिया था। जब टिकट चेकर आया तो उसने बताया कि नौजवान का स्टेशन गुजर चुका है, आप नया टिकट बना दें और जुर्माना भी ले लें, नौजवान ने धीमे लहजे में कहा। कुलसूम मुस्कुरा दी। वो समझ गई कि ये अजनबी उसे बाहिफाजत पहुंचाने के लिए अपने स्टेशन पर नहीं उतरा। सादिकाबाद पहुंचकर नौजवान ने उसका बैग उतारा और उसे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने आया। आप हमारे घर नहीं चलेंगे? मेरी खातिर आपने इतना सफर किया, क्या इस मंजिल को कोई नाम नहीं देंगे? कुलसूम ने जज्बाती होकर पूछा। नौजवान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वापस जाना है। आप खैरियत से पहुंच गईं, मेरे लिए यही काफी है। कुलसूम ने महसूस किया कि उसका खोया हुआ एतमाद इस अजनबी की वजह से लौट आया है। कुछ माह गुजर गए। वो नौजवान सादिकाबाद की उस लड़की को भूल नहीं पाया था। उसे लगा जैसे उसका दिल वहीं रह गया हो। एक दिन वो दोबारा उसी ट्रेन में सादिकाबाद के लिए रवाना हुआ, सिर्फ उसे ढूंढने की खातिर। वो कई घंटे स्टेशन पर बैठा रहा, मगर कुलसूम कहीं ना मिली। वो एक हारे हुए शख्स की तरह वापस अपने शहर लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वालिदा ने बताया कि एक पार्सल आया है। उसने खोला तो उसमें एक परफ्यूम, उसका पसंदीदा नॉवेल और एक खत था। खत में लिखा था, शहाब अब्दुल्ला, मैंने आपको बहुत तलाश किया। लड़ाई के दौरान आपका विजिटिंग कार्ड गिर गया था। मैं रोजाना आपका नंबर मिलाती रही, मगर शायद वो पुराना नंबर था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढा। जिंदगी की इस ट्रेन ने मुझे कहाँ उतारना था और मैं कहाँ उतर गई। नीचे मेरा नंबर है, राब्ता कीजिएगा। कुलसूम। खत पढ़कर शहाब की आंखें नम हो गईं। वो जिसकी तलाश में शहर की खाक छान रहा था, वो खुद उसे पुकार रही थी। उसे समझ आ गया कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि किसी की ढाल बनने का नाम है।